Hello everyone, welcome to second lecture of Maxima Minima. In this video we are going to see how to solve Maxima Minima problem, exercise 6.5, chapter 6, class 12th maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic, today's topic, exercise 6.5, chapter 6, class 12th NCERT. First question, thus. A square piece of a tin of a side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is the maximum possible? Volume of box को maximum करने let let side cut off from each corner of square px. Okay, this is the square piece, side is 18, x cut from each corner, so x, 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 x. If this 18 minus 2x, this 18 minus 2x. Okay. Therefore, length equal to 18 minus 2x and breadth equal to 18 minus 2x. Height equal to x, because x side be folded. x साइड भी फोल्डेड, जितना हमने कटिंग करा उतना ही हमने फोल्ड करा यहाँ पे, तो हाइट यहाँ पे यही होगा. बच्चों के यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो है हमारा वो स्क्वायर पीस है तो क्यूब बनेगा, लेकिन क्यूब नहीं बनता, ये क्यूबाइड बनता है. देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू LBH, दैट इज B इक्वल टू 18 minus 2x into 18 minus 2x into x, that is 18 minus 2x का whole square into x, that is 324 plus 4x square minus 72x. This is 4x cube minus 72x square plus 324x. Differentiate with respect to x. Therefore dv by dx equal to d by dx equal to 4x cube minus 782x square plus 324x equal to 4 to 12x square minus 144x plus 324. 12 is taking out 12, that is x square minus 12x plus 27. इसको मल्टीप्लाई में स्प्लिट करना है. 12 को लिख दो -2 -9 और -3, 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27. राइट आउट 12 इंटू x minus 3 minus 9 x minus 3, therefore it becomes 12 x minus 3 x minus 9. For maxima and minima,
and minimum dv by dx equal to 0. 12 into x minus 3, x minus 9 equal to 0. If x minus 3 equal to 0, x equal to 3. If x minus 9 equal to 0, x minus 9 equal to 0, that equal to x equal to 9. Okay, it's not possible. So x equal to 3 cut off from the each corner. Again, चूँकि dv by dx equal to 12x square minus 144x plus 324, ये हमारा dv by dx दिया होता है, इसको हमें डबल डिफरेंशिएट करना है ताकि ये हम प्रूव कर सकें कि ये मैक्सिमम है यहाँ पे वॉल्यूम. तो दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dv d square v by dx square इक्वल टू 24x minus 144. डिफरेंशिएट कर लिया हमने. अब पुट x इक्वल टू 3, दैट इज 24 minus 144, 24 into 3 minus 144, that is minus 72, less than 0, maximum. Okay, volume of box पे maximum when 3 centimeters cut from the each corners of the square. Okay, next question, question number 18 same है, ठीक है. अब आ जाओ question number 19. Question number 19, so that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. The square has maximum area. One minute. Square has maximum area. So that the rectangle inscribed in a circle, क्वेश्चन. सर्कल के बीच में रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर दो. जो आप इंस्क्राइब करोगे A, B, C, D, लेट इसका लेंथ भी x एंड ब्रेथ भी y और इसका रेडियस को आप r कर लो. therefore it is 2r, it सेंटर होगा. लेट लेंथ ऑफ a rectangle be x and breadth of rectangle equal to y. लेंथ को x के ले लिया हमने, ब्रेथ को y करा, एंड लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू r. एक चीज यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, जिसके अंदर में आप इंस्क्राइब करोगे किसी चीज को, उसका जो इंस्क्राइब करोगे जिसके अंदर में, वो बाहर वाला चीज आपका जिसके अंदर में इंस्क्राइब होना वो कांस्टेंट होता है, उसके सारे डायमेंशन कांस्टेंट हो गए. इसमें सर्कल के अंदर में रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया हमने, तो सर्कल का डायमेंशन जितने भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा. सर्कल का डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन क्या है, रेडियस, तो r इज कांस्टेंट. तो हमें एरिया मैक्सिमम करने में सबसे पहली बात, आप इसका पाइथागोरस थ्योरम से पहले x और y रिलेशन निकालो. इन ट्राइंगल ABC, h square equal to p square plus b square, that is AC square equal to AB square plus BC square, that is 2r का square equal to x square plus y square, that is 4r square equal to x square plus y square. Therefore y square equal to root under
4r² माइनस x² y। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप क्या करो कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L इंटू बी, दैट इज A इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई, A इक्वल टू रूट x इंटू रूट 4r² माइनस x², दैट इज स्क्वायरिंग बोथ, इसको z लेट करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज a² इक्वल टू x² इंटू 4r² माइनस x², दैट इज a² इक्वल टू 4r² x² माइनस x⁴। इसको लेट कर लो आप, लेट z इक्वल टू a²। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, therefore dz upon dx equal to, अब a स्क्वायर के बदले आपने z लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर के डिफरेंस में आपको 2a और da by dx नहीं लिखना, इसलिए z लिख दिया इसको। वो हमेशा जब a स्क्वायर करोगे तो आप इससे एज्यूम कर लेना dx इक्वल टू 4r² x² माइनस x⁴, दैट इज 4 to the 8r² x minus 4x cube, 4 maximum minima, 4 maxima and minima, dz by dx equal to 0, therefore 8r² x minus 4x² cube equal to 0, therefore 8 r square x equal to 4x cube, 4 to the 8, एक x कैंसिल करते हैं x², 2r² इक्वल टू x², therefore x इक्वल टू √2r, x इक्वल टू √2r। ओके, put the value of x in equation first, that is y equal to 4 root under 4r² minus x². Putting the value of x in equation first, that is y equal to root under 4r² minus √2r whole square, that is 4r² minus 2r square, that is y equal to √2r। Equation number second or third, we see that from equation third and from equation second and third, x equal to y, therefore ABC is rectangle, C is square, ABCD is a square, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी करा था if adjacent sides of the rectangle is equal then it is form a square, तो रेक्टेंगल का यदि एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो आ जाओ dz अपॉन dx इक्वल टू 8r² x माइनस 4x क्यूब, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन dx इक्वल टू dy dx 8r² x माइनस 4x क्यूब, दैट इज 8r² minus 4 to the 12x². Put x equal to √2r, therefore 8r² minus 12 √2r का whole square, that is 8r² minus 24r², that is minus 16r², less than 0, maximum. Hence area of rectangle inscribed in the circle is maximum when it is a square. Okay, next question आ जाओ। Question number 20. So that the right circular cylinder of a given surface in a maximum volume is such that its height is equal to the diameter of
द बेस। यहाँ पे दो चीज़ है, गिवन और मैक्सिमम मिनिमम। तो जो आपका गिवन टर्म्स दिया होगा, जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया आपका कांस्टेंट हो गया, और जो वेरिएबल है वो जिसका मैक्सिमम मिनिमम करना है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका वेरिएबल है, क्योंकि आपको बोल रहा था ये कि जो सरफेस एरिया है वो गिवन है, तो ये हो गया कांस्टेंट। और जो आपका वॉल्यूम है वो उसका मैक्सिमा या मिनिमा करना होगा, तो जो मैक्सिमा मिनिमा करना है वो वेरिएबल है। जो कांस्टेंट टर्म है उससे x और y की वैल्यू, x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में आपको लिख करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका। सबसे पहले क्या लो, यहाँ पे एक सिलेंडर बना लो, जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की लेकिन बना भी सकते हो आप समझने के लिए। एक सिलेंडर बना लो जिसका रेडियस r है और हाइट को h कर लिया, h और रेडियस r। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। let radius of cylinder equal to r and height equal to h। देन सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब TSA 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, दैट इज s इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r h। therefore s minus 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r h। s minus 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r इक्वल टू h। आपके पास दो वेरिएबल थे यहाँ पे, एक r है एक h है। तो हमने क्या करा, h का जो वैल्यू है वो हमने r के टर्म में निकाल लिया। क्यों निकाला h का, r का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे r ना दो जगह था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कॉमन लेने में आपको दिक्कत होता, इसलिए हमने h की वैल्यू निकाल लिया। आप कहते हैं यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लिया, अब आप वॉल्यूम दिया होता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h। therefore v इक्वल टू पाई r स्क्वायर, और h के बदले में लिख दिया s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल कर दिया हमने, एक r से एक r कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा बच गया कितना, r अपॉन 2 s माइनस 2 पाई r स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो इसको, s बाई 2 r माइनस पाई r क्यूब। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। This is the v differentiation with respect to r. Therefore, dv by dr equal to d by dr s by 2r minus pi r cube. Therefore, s by 2 minus 3r square, 3r square, 3 pi r square. Okay. अब आ जाओ नेक्स्ट, for maxima and minimum, for maxima and minima dv by dr equal to 0, that is s by 2 minus 3 pi r square equal to 0। therefore s by 2 equal to 3 pi r square। राइट साइड इसको सेट कर दिया हमने, एंड s इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 into 2 6 pi r square। दिस इज द s। इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देना इसकी वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1, that is h equal to s 6 pi r square minus 2 pi r square upon 2 pi r। therefore h equal to 4 pi r square upon 2 pi r, that is pi से pi कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 से 4, pi कैंसिल, एक r कैंसिल हो जाएगा। h equal to 2r। therefore height equal to diameter, 2r equal to हमारा डायमीटर होता है, therefore height equal to diameter। ओके, ये प्रूव हो गया। अब हमें करना है इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम वगैरह के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है,
अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि डी वी बाई डी आर इक्वल टू एस बाई टू माइनस 3πr² है. Differentiation with respect to r, therefore dv by dr equal to 0 minus 6πr, that is negative maximum. अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, therefore volume of cylinder is maximum when height is equal to diameter. Okay, next question number आ जाओ, question number 22. Question number 22. 21 भी सेम है, 21 और 22 में केवल डिफरेंस है, यहाँ पे सरफेस एरिया हमारा वेरिएबल है और जो वॉल्यूम है वो 100 दिया हुआ कांस्टेंट है. ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं 22. क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, a wire of length 28 meter is to be cut into a two piece. One of the piece is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two piece so that the combined length of the square, combined area of the square and the circle is maximum. मतलब है सिंपल सा कि एक वायर है, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. ये वायर है इतना बड़ा, इस वायर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये और एक पार्ट इसका अगला. ठीक है, तो वही हमने डायग्राम बना लिया. 22 एक वायर ले लिया हमने, यहाँ पे A और B है वायर, इस पार्ट को लेंथ x है, इसका 28 माइनस एक्स होगा क्योंकि टोटल लेंथ हमें 28 दिया हुआ है. ठीक है, तो उसके बाद आप कर सकते हो जो फर्स्ट पार्ट होगा, यहाँ पे देखना जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि आपको दिया था यहाँ पे पहले सर्कल, पहले स्क्वायर दिया हुआ फिर सर्कल, लेकिन मैं उल्टा कर लेता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन आपको ईजी हो जाएगा. तो आप यहाँ पे फर्स्ट जो वायर था A और B C, इस पार्ट को हमने क्या करा, एक सर्कल बना लिया और इस पार्ट को हमने क्या करा, एक स्क्वायर बना लिया. तो जो ये पार्ट हमने कट करा था फर्स्ट पार्ट, इसी पार्ट को हमने बैंड करा तो ये सर्कल फॉर्म करा. इट मीन्स इसकी जो लेंथ होगी उस सर्कल की सर्कमफेरेंस के बराबर होगा. दैट इज C इक्वल टू RC keep quiet 2 pi r, that is x equal to 2 pi r, r equal to x upon 2 pi. Okay, therefore area equal to area of circle equal to pi r square, that is pi x by 2 r pi, that is square pi x square upon 4 pi square 4 pi. नेक्स्ट वन आ जाओ, एरिया ऑफ जो ये जो सेकेंड पार्ट को करोगे बैंड, वो पैरामीटर ऑफ वो होगा स्क्वायर के बराबर होगा. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a, दैट इज 28 माइनस x इक्वल टू 4a, therefore a इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 4. ओके, therefore एरिया इक्वल टू हो जाएगा इसका, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, दैट इज 28 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 28 अपॉन 4 का स्क्वायर, दैट इज 28 माइनस एक्स 784 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 56 अपॉन 16. दिस इज द A2. टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, A1 प्लस A2, दिस इज द A1 टोटल एरिया. देयरफॉर A इक्वल टू A1 प्लस A2, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 784 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स इक्वल टू 16.
This is A. Differentiation with respect to x. This is dA by dx equal to 2x upon 4 pi plus 0 plus 2x minus 56 upon 16, that is equal to x upon 2 pi plus 2 कॉमन लेके हटा सकते हो x minus 28 by 8. ओके, चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो. अब लिख देते हो 4 मैक्सिमा एंड मिनिमम, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमम dA by dx equal to 0, x by 2 pi plus 20x minus 28 by 8 equal to 0, x by 2 pi x minus 28 by 8. अब इसको चेंज कर सॉल्व करना है, स्पेस चाहिए हमें. ठीक है, तो हटा देता हूं इसको. x by 2 pi equal to x minus 28 by 8. ये हमारा था, इसको यहाँ लिख दिया. 2 से काट दो 4, तो क्या होगा x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4x इक्वल टू पाई x माइनस 28 पाई. इसको इधर कर लो, तो क्या होगा आपका 28 पाई इक्वल टू पाई x प्लस माइनस 4x. 28 पाई इक्वल टू पाई minus 4 into x, that is x equal to 28 pi upon pi minus 4. This is the x, length of first. plus. ये हॉल का माइनस, ठीक है, दिस इज द माइनस प्लस. ओके, देयरफॉर x इक्वल टू दिस. अब इसकी वैल्यू पुट कर देना आपको. ये फर्स्ट पीस का लेंथ हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकेंड पीस. ठीक है, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इक्वल टू 28 माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें से एक्स के डाल दो, तो 28 माइनस 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4. ठीक है, क्रॉस कर दो, लिखोगे मल्टीप्लाई, तो 28 इंटू पाई प्लस 4 minus 28 pi upon pi plus 4, that is 28 pi plus 112 minus 28 pi by pi plus 4. This is cancel, 112 by pi plus 4. ठीक है, this is the piece of length of second piece. Okay. अब हमें एरिया को मैक्सिमम करना है. हमें क्या करना है, जो हमारा एरिया दिया हुआ था उसको मैक्सिमम करना था. लंबा क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी हटाना पड़ेगा हमें. तो क्या था हमारा, dA by dx इक्वल टू x by 2 pi प्लस x minus 28 by 8. ये था हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d square a by dx square
इक्वल टू 1/2 पाई प्लस 1 माइनस 0/8। तो ये पॉजिटिव होगा, सारा पॉजिटिव टर्म है, तो मिनिमम होगा। क्या होगा? एरिया मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि किसी तरह की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।